Hello students, welcome to once again in the NCERT exercise solution of our unit number 6, General Principles and Processes of Isolation of Elements. As we know that in last sessions we completed a NCERT in-text solved questions and NCERT in-text unsolved questions. So today we will start about the NCERT exercise. So first the questions asked in this manner: copper can be extracted by hydrometallurgy. We know that what is the meaning of hydrometallurgy, but not zinc. We know that the oxidation potential of zinc is minus 0.76 volt, right? Or plus 76, or reduction is minus 0.76, and iron is minus 0.44 volt is a reduction potential. So it's a lower than that of the copper, right? So hence both zinc and Fe can displace copper from solution of Cu plus to iron. But we know that the zinc is stronger reducing agent than iron. So yet iron scrap is chiefly used in hydrometallurgy of copper because it is much cheaper than zinc. But in contrast, to displace zinc from solution of Zn plus 2, we need a more reactive metals. For example, aluminium, magnesium, calcium, potassium. All these elements reacts with a water and then forming their corresponding ions with the evolution of hydrogen gas. Because in EMF series, all these metals are above the hydrogen, okay, standard electrode potential of hydrogen. Thus, aluminium, magnesium, etc. cannot be displaced zinc from Zn plus 2. Thus, copper can be extracted by hydrometallurgy but not zinc. Next, what is the role of depressions in froth flotation process? As we know that the froth flotation process, the role of depressions is to prevent one type of sulfides or particle from forming the froth with air bubbles. For example, if I take a NaCN is used as a depression to separate PBS ore from zinc sulfide ore. The reason being that the sodium cyanide, they form a zinc complex Na2ZnCN4 on the surface of ZnS, thereby preventing it from the froth. So under this condition only PBS forms froth and hence can be separated from zinc oxide. So NaCN when reacts with zinc, so it's converted into their respective salt is sodium tetracyanozincate. So this is the role of depressions. Why is the extractions of copper from pyrites difficult than that from its oxide ore through reduction? We know that the standard free energy of formation means delta GF standard of Cu2s, right? So this Cu2s is which is more negative than those of carbon disulfide and H2s. So CS2 in fact there is endothermic reactions, therefore neither carbon or nor hydrogen can reduce Cu2s into Cu. But in contrast, Cu2O is less negative than that of the carbon monoxide. So Cu2O when reacts with carbon is converted into copper. It is because of this reason that extractions of copper from pyrites is difficult than from its oxide ore through reduction. Alternatively, we know that the delta G standard of versus temperature in Kelvin line for carbon monoxide has a negative slope, and there is no compound CS analogous to CO with a steep negative delta GS versus temperature line. So carbon is a good reducing agent for oxides but a poor reducing agent for sulfides. So sulfides are normally roasted in air to form oxides before reducing them with a carbon. Then explain zone refining that we already studied in our theoretical portion, same way column chromatography. So presently we do not take that much interest to explain once again about the zone refining or column chromatography. Next one, out of carbon and carbon monoxide, which is better reducing agent at 673 Kelvin temperature. Once again, the questions is based on the Ellingham diagram. We know that the graph here itself suggests that, okay. So this is the graph. First you have to observe the graph, right? So the graph of CO2, this is the graph of C2CO2 and this is the graph of C2CO. right? And the temperature is 673
Kelvin, means near about 400 degree centigrade temperature. So we know that when carbon reacts with dioxygen, so there are two different types of possibility that we have to observe. First is the carbon dioxide and remaining is the carbon monoxide. And this carbon monoxide is further react with oxygen is converted into carbon dioxide. So in the first reactions, the volume of CO2 produced is the same is that of the oxygen observed. So in short हम इस तरह से भी उसको दिखा सकते हैं ना. देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि इसका जो एलिंगम डायग्राम आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 673 केल्विन से जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, 673 से आप आगे जा रहे हैं. आप देखिए यहाँ पे, राइट. तो CO इज मोर, क्योंकि यहाँ पे CO वाला ग्राफ है वो नीचे है. देखिए आप यहाँ पे CO वाला ग्राफ नीचे, यानी उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है. सो above 673 Kelvin, CO is more stable and hence is oxidized into CO2, which is less rapid than that of the C2CO2. Therefore, above 673 Kelvin, carbon or above 63, so carbon is a better reducing agent than CO. समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिखाया गया है कि 673 केल्विन पे क्या हो रहा है. देखिए, द 3 लाइन्स क्रॉस एट 673. यहाँ पे 673 में 3 लाइन क्रॉस हो रही है. बिलो दिस टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम C एज वेल एज फ्रॉम CO इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल एंड अबाउट दिस टेम्परेचर फॉर्मेशन CO फ्रॉम C इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल. दूसरे शब्दों में हम आसान भाषा में हम समझाए तो बिलो 673 केल्विन बोथ कार्बन एंड, देखिए 673 पे क्या होता है कि ये दोनों जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है, both CO and C and CO act as a reducing agent, but since CO ये जो वाला है can be more easily oxidized to CO2, यानी ये ज्यादा CO2 में ऑक्सीडाइज हो पाएगा. So then therefore below 673 Kelvin CO is more effective reducing agent than carbon. लेकिन 673 से हम अपर जाएंगे तो CO is more stable, hence its oxidized CO2 is less rapid than that of the carbon to carbon dioxide. यानी above 673 में कार्बन ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है CO से. तो आपको पता चल गया होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. वाई आर दे सो प्रेजेंट. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है, द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड कौन सी होती है, हमें मालूम है एंटीमनी होती है, सिलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होती है. एंड दिस एलिमेंट बीइंग लेस रिएक्टिव आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉपर सल्फेट H2SO4 सॉल्यूशन, सो हेंस इज सेटल डाउन अंडर एनोड एज ए एनोड मड. Write down the reactions taking place in different zones in the blast furnace during the extraction of iron. तो ये पूरा मैंने एक पूरा लेक्चर्स यहाँ पे एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयन ऑक्साइड्स टू आयन का मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे. नेक्स्ट है 6.8 में जो क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस होगा तो मैं इतनी ज्यादा डेप्थ में मैं उसका प्रोसेस नहीं करूंगा. राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड. यानी जिंक ब्लेंड यानी ZnS होता है. ZnS का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम है कि उसको मुझे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करना पड़ेगा ड्यू टू सल्फाइड, फिर मुझे रोस्टिंग में जाना पड़ेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड और देन इज रोस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ एयर. रोस्टिंग का मतलब एक्सेस ऑफ एयर में मुझे जिंक ऑक्साइड में जाना पड़ेगा और जिंक ऑक्साइड फिर कार्बन के साथ 1673 केल्विन के आसपास प्रोसेस करके जिंक और CO को निकाल देगा. क्योंकि मुझे मालूम है कि 1673 पे जिंक मेटल बीइंग वॉलेटाइल हो जाती है और डिस्टिल्स ओवर होने की वजह से वो कंडेंस हो जाएगी और बाद में मुझे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना पड़ेगा. यानी ZnSO4 में वो Zn का प्योर जिंक का कैथोड और इम्प्योर जिंक का एनोड मुझे लेना पड़ेगा. सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट सो प्योर जिंक गेट्स डिपोजिटेड ऑन द कैथोड. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बताया गया है कि स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर. यानी जो सिलिका का जो रोल है तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मुझे मालूम है कि ड्यूरिंग रोस्टिंग कॉपर पायरेट्स इज कन्वर्टेड इनटू FeO एंड CuO और जो मेरा FeO वाला पोर्शन है वो FeO मेटालिक ऑक्साइड्स. सो ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड इन दिस पोर्शन दिस FeO is an impurity, so it's a basic impurity, so we have to take an acidic flux like silica is added during smelting.
तो यानी वो स्लैग में चला गया जाएगा. सो द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर इज टू रिमूव फेरस ऑक्साइड एज अ फेरस सिलिकेट एज अ स्लैग. व्हाट इज मीन बाय टर्म क्रोमेटोग्राफी? हमें मालूम है कि द chromatography was originally derived from the Greek word chroma. Chroma means color and graphy means writing. So because this method was first used for the separations of colored substance into individual components. So now the term chromatography has lost its original meaning and the method is widely used for separations as well as purifications, identifications and characterizations of the components of a mixture, whether colored or colorless. दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि what criteria is followed for selections of stationary phase in chromatography. So the stationary phase is selected in such a way that the impurities are more strongly adsorbed on the stationary phase then elements to be purified. So under this condition, element to be purified. So under these conditions, when the column is extracted, the impurities will be retained by stationary phase while the pure component is easily eluted. दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल. तो हमें मालूम है जो मेरे पास जो प्रोसेस होती है मोंड प्रोसेस, मोंड कार्बोनिल प्रोसेस भी कई बार इसको बोलते हैं, कि व्हेन प्योर निकल इज हीटेड इन अ करंट ऑफ CO at 330 to 350 Kelvin, so first it forms a volatile nickel tetracarbonyl complex leaving behind the impurities, क्योंकि impurities कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नहीं जुड़ेगी. So the nickel tetracarbonyl thus obtained is then heated to a higher temperature near about 450 to 470. So when it undergoes thermal decompositions to give pure nickel, उसको हम मोड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल भी बोलेंगे. हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन बॉक्साइट और एसोसिएटेड विथ सिलिका? तो मैंने आपको वो जो लीचिंग वाला जो इक्वेशंस था NaOH के साथ वो जैसे जुड़ के सोडियम सिलिकेट में चला जा रहा है, तो वो मैंने 2 बार आपको यहाँ पे बताया था. गिविंग एग्जाम्पल्स डिफरेंशिएट बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. तो हमें मालूम है कि रोस्टेशन में हमने एक्सेस एयर में जाना है और कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर में हमें जाना है. हाउ इज कास्ट आयन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयन? तो हमें मालूम द आयन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस से जो हमें मिलता है वो पिग आयन होता है. इसमें 4% कार्बन है एंड मेनी अदर्स इंप्यूरिटीज इन स्मॉलर अमाउंट्स लाइक सल्फर्स, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज. But in cast iron, on the other hand, is made by melting pig iron with a scrap iron and coke using hot air blast. So it has slightly lower carbon content and it's extremely hard and brittle in nature. फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछा गया है, वो बेसिक क्वेश्चंस था जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया हुआ था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर. एक बार फिर से देख लेते हैं. The naturally occurring chemical substance in form of which the metals occur in the earth along with impurities, उसको minerals बोलेंगे. And the mineral from which the metals can be extracted conveniently and economically is called as an ore. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी और है वो मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होती है. जैसे आयन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज अ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड सभी में मिलते हैं. बट आउट ऑफ दिस मिनरल ऑफ आयन द ऑक्साइड्स ऑफ आयन्स आर एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल. सो इट मीन्स दैट ऑक्साइड्स ऑफ आयन आर द ओर ऑफ आयन. Same way in the case of aluminium occurs in earth crust in form of either bauxite or clay. But out of these two minerals, aluminium can be conveniently and economically extracted from bauxite. So bauxite is the ore of aluminium. Why copper matte is put in silica lined converter? Right? So copper matte is a chiefly consists of Cu2s along with some unchanged FeS. So when a blast of a hot air is passed through a molten matte which is taken in a silica line, so on converter, so we know that this silica will react with the FeO and is converted into the slag, right? So when the whole of the iron has been removed as a slag, so some of Cu2s now undergoes oxidation to Cu2O and now Cu2O is reacted with Cu2s to form a copper matte. So in short, copper matte is heated in silica line converter to remove FeS present in the matte as a ferrous silicate.
What is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? We know that the two different role of cryolite, it makes alumina as a good conductor of electricity, and number two, it lowers the fusion यानी melting temperature of alumina from 2323 Kelvin to 1140 Kelvin. नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है नंबर 19 में हम पहले चले जाएंगे. हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ऑर? सो द लीचिंग ऑफ द लो ग्रेड कॉपर ऑर इज कैरिड आउट विथ एसिड्स, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन कॉपर गोज इनटू सॉल्यूशन एज ए Cu+2. यानी Cu को Cu+2 में डालने के लिए मुझे ये लीचिंग प्रोसेस में मुझे जाना पड़ेगा. Why zinc is not extracted from zinc oxide through reduction using carbon monoxide? तो हमें मालूम है कि द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है CO2 फ्रॉम CO is higher than that of the formation of ZNO from zinc. So CO can't be used to reduce ZNO to Zn. एलिंगम डायग्राम के साथ वो रिलेटेड था. नेक्स्ट वही क्वेश्चंस फिर से दूसरी तरह से दोहराया गया है. द वैल्यू ऑफ डेल्टा GF स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 इज -540 एज कंपेयर टू Al2O3 इज -827. सो इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम? We know that two different equations, so we observe in both case both delta G having a negative value, so the reactions are spontaneous in nature. But if we subtract equations 2 from 1, so we get such a type of answer where delta G is equal to still is -287 kilojoule per mole. So it means that the delta G negative value, so reduction of Cr2O3 by aluminium is possible. Next, out of carbon and carbon monoxide, which is better reducing agent for ZNO? ये फिर से हमें यहाँ पे 6.20 में भी था और फिर से यहाँ पे दिया हुआ है. तो देखिए, मैंने अभी बोला था कि जो मेरा CO2 मुझे जाना हो तो वो ऑलवेज हायर होता है ZNO से. सो CO कैन नॉट बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड टू जिंक. बट दूसरी तरह से हम देखेंगे तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ हम जैसे जाते हैं, जैसे बिलो 1180 टेम्परेचर में, सो C2CO2 इज लोअर एट टेम्परेचर अबाउ 1270 केल्विन. तो मैंने वो सिंपल प्रोसेस में आपको दिखाना चाहता हूं कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन CO फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड जिंक, राइट. फिर यहां पे एक और दिया हुआ है, द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट in particularly case depends on thermodynamic factor. So how far do you agree with this statement, right, and support your opinion with two different examples? So thermodynamic factor help us in choosing a suitable reducing agent for the reductions of particular metal oxides to metallic state. जैसे हमने एलिंगम डायग्राम में देखा था, तो हम ऐसा देखते हैं जैसे एल्यूमिनियम है और जिंक है विच कैन रिड्यूस FeO, बट Fe कैन नॉट रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड टू जिंक. सो इस तरह से कार्बन कैन रिड्यूस ZNO, बट Zn डू नॉट रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. सेम वे हमने 6.24 में हम देख रहे हैं, नेम द प्रोसेस फ्रॉम विच chlorine is obtained as a byproduct. What will happen if an aqueous solution of NaCl is subject to electrolysis? So sodium metal is prepared by down process. So it involves the electrolytes lysis of a fused mixture of NaCl and CaCl2 near about 600 degrees centigrade. So in this electrolysis process, sodium is discharged at the cathode while Cl2 is obtained at the anode as a byproduct. ये NaCl का रिएक्शंस है. लेकिन हम एक्वियस सॉल्यूशंस में जैसे चले जाएंगे तो एक्वियस सॉल्यूशंस में क्या होगा, एनोड पे क्लोरीन तो आएगा लेकिन कैथोड पे अभी सोडियम की बजाय जो अभी पानी है वो अपना हाइड्रोजन गैस और OH वो रिलीज करेगा, राइट. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम?
तो हमें मालूम है कि इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार का जो यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा कि कैथोड में Al+3 इज कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम, और एनोड में कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ग्रेफाइट इज मच चीपर देन एनी मेटल, सो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ एनोड। So the role of graphite in the electrometallurgy of aluminium is to prevent the liberation of O2 at the anode, which may otherwise oxidize some liberated aluminium back to Al2O3. फिर थोड़ी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे दिखाई गई है कि आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय फॉलोइंग मेथड। जैसे आपको बताया हुआ है, जोन रिफाइनिंग का है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है और वेपर फेज रिफाइनिंग है। तो ये जो पूरा शॉर्ट नोट्स का पोर्शन तो हमने पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे दिखाया है प्रिडिक्ट कंडीशंस अंडर विच एल्यूमिनियम माइट बी एक्सपेक्टेड, तो 1623 केल्विन वाला था वो 3 बार हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म हो रही है। अभी हम एग्जाम्पलर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द जनरल प्रिंसिपल्स में जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 1 करेक्ट आंसर वाला है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन आयंस टू क्लोरीन गैस अकर्स। तो ये बराबर है, यही हमारा आंसर आएगा, राइट। दूसरा है व्हेन कॉपर 1 is mixed with silica in reverberatory furnaces, copper mate is produced. So the copper mate में क्या होगा, तो कि कॉपर सल्फाइड होगा Cu2S और आयन 2 सल्फाइड होगा, यानी C कलकत्ता आएगा इसमें आंसर। तीसरा वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शंस का यहाँ पे एग्जाम्पल्स मुझे देना पड़ेगा। तो देखिए ऑटो रिडक्शंस में क्या होगा कि देखिए ये Cu2 और Cu2S साथ में ही ऑटो रिडक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑटो रिडक्शंस का यहाँ पे एग्जांपल है। फोर्थ वाला है अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो मेरे यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो एल्यूमिनियम और आयन है, Fe है, दोनों है। पांचवा वाला मुझे पूछा गया है तो इसमें है जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, राइट। तो इसमें क्या आएगा कि इंप्यूरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल देन अ सॉलिड मेटल, यानी बी आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ में मुझे पूछा गया है, आप देखेंगे कि इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शंस ऑफ Cu2O विथ। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है तो Cu2O को किसके, Cu2S के साथ ही होगा, तो ही उसका प्रोसेस हो जाएगा, जैसे मैंने ऑटो रिडक्शन में अभी बताया था। नंबर 7 में बात हो रही है कि ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, सो द रिएक्शंस एट एनोड, यहाँ पे क्या बोला गया है, एनोड में बोला गया, तो एनोड में तो यही रिएक्शंस चलेगा, राइट। फिर इन द मेल्टिंग पॉइंट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी मुझे यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का जो मेटलर्जी है तो मुझे यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बी बॉम्बे आ जाएगा। 9th में हमने देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक में तो कॉपर और जिंक का ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ये तो जोन रिफाइनिंग में था, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ओके। नंबर 10th में मुझे पूछा गया है कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ गोल्ड एंड silver involving leaching of metals with cyanide ion, the metal is recovered by, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयंस में, क्योंकि उसने जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाया था उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एलिंगम डायग्राम पे है। आंसर द क्वेश्चंस 11 to 13 ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। तो ये फिगर यहाँ पे आप देखेंगे तो C वाला फिगर है, CO वाला भी है, C2CO है और एक Fe वाला फिगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो Fe वाला एक फिगर यहाँ से चल रहा है और ABCDE कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी पर मोल के बारे में बात की हुई है, राइट।
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच कार्बन रिड्यूस FeO टू आयन एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखेंगे उसमें क्या होगा कि बिलो टेम्परेचर, देखिए ये जो ए वाला पॉइंट है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे FeO टू आयन मुझे जाना है, यानी FeO टू आयन में मुझे क्या होगा कि ए से ऊपर वाले टेम्परेचर में ही जाएगा ना। ये जो आप देख रहे हैं, तो देखिए बिलो टेम्परेचर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट भी नहीं होगा, above टेम्परेचर एट पॉइंट ए बट बिलो टेम्परेचर इन पॉइंट डी भी नहीं होगा, लेकिन above टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए ये कुछ मुझे यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि क्या होगा कि देखिए above पॉइंट ए क्या हुआ है कि देखिए C2 CO, अब देखिए C2 CO जो होता है, राइट, तो वो क्या होता है C2 CO ऑलवेज क्या होगा, राइट, आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज मोर नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगा। जैसे मैं Fe2 FeO के बारे में बात में समझा रहा हूं, तो इसी वजह से यहाँ पे ये पॉइंट्स मुझे मिल सकता है। बिलो पॉइंट ए आपको किया हुआ है, तो नंबर 12 में हम देखेंगे तो बिलो में क्या होगा, बिलो पॉइंट ए FeO कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, क्योंकि बिलो पॉइंट ए के में CO2 इज ऑलवेज मोर नेगेटिव है। देखियो समझ में आ रहा है। 13वां जो प्रश्न मुझे पूछा गया है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ FeO एट द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी डी वाला पॉइंट से मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकाला हुआ है। तो क्या होगा कि जो डी वाला पॉइंट है हमारा, तो वहां पे डेल्टा जी वैल्यू होती है ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शंस की विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है। डी वाला पॉइंट देखिए जो कर्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FeO, राइट, तो जो यहाँ पे FeO वाला पोर्शंस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलवेज FeO फ्रॉम Fe एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम CO, तो उसी वजह से 13 में मेरा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मोर देन वन करेक्ट आंसर के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि एट द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू विच द पॉइंट्स इन फिगर FeO will be reduced Fe by coupling the reactions to FeO2 with all the following reactions। तो देखेंगे आपको ये जो पुराना वाला जो ग्राफ था उसकी यहां से उसने पूछा गया है, लेकिन आपको ये आंसर्स देने के लिए, नंबर 14 का आंसर देने के लिए आपको पॉइंट बी भी होगा ना, उसमें जो पॉइंट बी वाला पॉइंट जो मैंने ऊपर दिखाया था और पॉइंट डी वाला पॉइंट भी आएगा, यानी बी और डी दोनों आंसर, बी और ई दोनों आंसर मुझे यहाँ पे मिल सकेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। कास्ट आयन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमेनिंग पिग आयन विथ स्क्रैप आयन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, सही है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, एन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड एज अ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, नो, ये गलत है। निकल इज प्यूरिफाइड बाय जॉन रिफाइनिंग, वो भी गलत है। लेकिन जर्कोनियम एंड टिटेनियम आर प्यूरिफाइड बाय वान आर्केल प्रोसेस, सही है, यानी ए और डी सही है। नंबर 16 में आप देखेंगे कि इन द एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम बाय होल हेराल्ड प्रोसेस प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद CaF2। तो आप देखेंगे इसमें, तो पहला वाला मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि लोअर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ Al2O3, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन मिक्सचर, फिर रिड्यूस Al+3 into Al एंड एक्ट एज अ कैटालाइज। ये 4 ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखेंगे तो 16 में आप देखेंगे तो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 सही है, और दूसरा आप देखेंगे इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन मिक्सचर, वो भी सही है। बाकी के 2 सही नहीं है। समझ में आ रहा है। नंबर 17 में हम अभी चले जाएंगे। तो नंबर 17 हमें यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ सब्सटेंस एडेड इन द फ्लोटेशन प्रोसेस। तो अब देखेंगे कलेक्टर्स एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल, सही है।
फिर दूसरा गलत है क्योंकि गैंग को नहीं करते हैं। बाय यूजिंग डिप्रेशन इन द प्रोसेस तो सही है, यानी ए और सी दोनों सही लगता है। फ्रॉथ स्टेबिलाईजेस का तो पॉइंट ही गलत है। नंबर 18 में आप देखेंगे तो इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय, तो एडजस्टिंग द प्रपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर वो सही होगा। और दूसरा है वो है यूजिंग डिप्रेशन, वो भी सही होगा। 19th वाला है कॉमन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, तो 19th में हमें मालूम है कि जो हमारी एक Fe2O3 जो आती है वो भी कॉमन है और SiO2 भी है। और आज का हम लास्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी गेलिना क्योंकि PbS है और दूसरा है कॉपर पायरेट CuFeS2, तो दोनों सल्फाइड वाली है तो वे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी आगे बात बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच।